এবার কিছু চলছে যেমন সামেশন অফ সাম অফ দি সিরিজ, যেমন মনে করো 1 প্লাস 2 প্লাস 3 প্লাস 4, দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট সিরিজ, যদি ওরা লিখেছে ফর অ্যাডভান্স बट इट इज नॉट फॉर एडवांस, এটা তো একদম পাতি হয়ে গেছে গো, ঠিক না? इसका समेशन चाहिए, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं समेशन, वी राइट इट समेशन, मान लो समेशन n भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, अगर n का वैल्यू होगा, एक्चुअली n होने से यहाँ n नहीं होना चाहिए, इट शुड बी समथिंग एल्स काउंटर, लेकिन इतना लूजली वी स्पीक, सपोज n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू n, 1 से लेके n तक, ऊपर वाला n नहीं होने से भी हो जाएगा, खाली n मेंशन करने से भी अंडरस्टैंड, मतलब पहले r की जगह में 1 पुट होगा, देन r इक्वल टू इट्स अ काउंटर, r इक्वल टू ये वाला r है, r इक्वल टू 1 से लेके n तक, n इज अपर लिमिट 1 इज, तो 1 फिर 2 फिर 3, तो इसका इतना इजी, इतना चलता है, ये चलते चलते ये समेशन n बन गया, हम लोग कुछ बोलते ही नहीं, बोलते समेशन n, समेशन n मतलब n तक सम किया हमने इसको, तो समेशन n का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1/2, ঠিক আছে, और এটার মধ্যে স্কোয়ার, जिसको हम लोग लिखते हैं समेशन n स्क्वायर, अभी तो ये सब सिंबल का जरूरत नहीं है, नाउ विल अंडरस्टैंड, एक्चुअल टाइम में लिखते हैं सेम थिंग, r इक्वल टू 1 टू n, सब से स्क्वायर बैठेगा, इट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, फिर नेक्स्ट आता है क्यूब, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, व्हिच मींस नाउ यू अंडरस्टैंड समेशन n क्यूब का मीनिंग क्या है, n इंटू n प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर, ঠিক আছে, তাহলে তিনটা ফর্মুলা পাইলাম আমি समेशन, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब बिना उसका लाइफ जमेगा ही नहीं, जेई में जा ही नहीं सकते, तो पाप भी जाने ही नहीं देगा तुमको, हॉल टिकट में लिखा रहेगा तुमको ये है कि नहीं, तुमको नहीं आता है तो घुसने नहीं देगा, बाकी तो बात की बात, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सम ऑफ द फॉर्मूलाज, सम नोटेशन तुमने समझ गया, सम ऑफ दी ये सब है, अभी कुछ कुछ एग्जांपल्स है, यू कैन लुक एट दिस एग्जांपल्स, जैसे मान लो एग्जांपल 46 का 1, ठीक है, 46 का 1 क्या बोला है, ये एग्जांपल इज समथिंग लाइक 46 का 1 12 plus 13 plus 14, something of this formula they are asking, and they are asking it has to continue up to 37, কিন্তু আমার বোর্ডটা কোনো কাজে লাগবে না আর কি, নভেম্বরের পরে 12 এর বোর্ডটা শেষ হয়ে গেল, ঠিক আছে না, বোর্ডটা কোনো কাজে লাগবে না আর কি, না রাখতেছি না, তো 12 শেষ, নভেম্বরের পরে শেষ, আমি তাই লগের কিছু প্লান করতেছি আমার মেয়ের লগের, এটা করলে মনে হচ্ছে তাই বলে হবে কোথায়, যাতে আমরা ফিক্স টাইম বেছে বলে তবে এটা চাপ করবো, একবার মনে হচ্ছিলাম ওই নিয়ে লয়ে যাবো তাই তো ওই না তাইলে লয়ে গেলে আবার আমার নামাই দিয়ে আবার পরে ক্লাস থাকবো, তো তাই লগের একটা গ্রুপ, ছোট ক্লাসের একটা আইব, আমরা ফাইনাল করছি না, স্টিল থিঙ্কিং, তাহলে বাড়িতে আমার সামনে বলে তো চাপে থাকবো, এনে তো উপরে তো বেঁচে তো আর এত মজা করতে পারবে না, না উপরে তো পারতেই দে না, সবাই সামনে তো থोड़ी করবে, कंपटीशन भी फील करेगा, आजू बाजू में और लोग रहेगा, ওইটা হয়তো বা চলবে, তাই 8 উঠলে 8, 9 উঠলে 9, 10 উঠলে 10, মানে আর নেব না, আর কি ঠিক আসবে, 11 12 বার রাখতাম না, ভিডিও হয়ে যাবে, ঠিক है, আর অন পারিও না, বেশি পরিশ্রম হয়ে যায়, চাপ হয়ে যায়, समेशन 37 तक কি ঠিক আছে, समेशन 37, আচ্ছা দেখো নরমালি আমি কি 1 টু 37 পর্যন্ত समेशन জানি, বাট এখানে কি হচ্ছে 12 টু 37 বলছে, তো আমরা কি করব, সামেশন n যেটা আপ টু 37 পর্যন্ত করব, মাইনাস সামেশন n আপ টু 11 পর্যন্ত মাইনাস করে দেব, কারণ 1 এর থেকে 11 জানি, 1 এর থেকে 37 জানি, এখন যদি আমার 12 টু 37 বলে তাহলে আমি কি করব, পুরোটা নিয়ে রাখ জায়গাটা বাদ দিয়ে দেব, तो ये क्या है n इंटू n प्लस 1/2, तो 37 इंटू 38/2 माइनस 11 इंटू 12/2, तो ये क्या हो जाएगा -66, और यहाँ 19 इंटू 37, 70 7 9 63, হ্যাঁ কত 703, 7 6 13 9 3,
ठीक है, यही वाला है आंसर। इरुम्बा भी सिमिलरली 2 3 भी है, तो मैं नहीं जाना एग्जैक्टली सेम। देखो 2 3 भी वही कहानी है। अभी उसका स्क्वायर है, उसका भी कुछ तो दिया है, दूसरा नहीं दिया। घर में ये सब यू हैव टू कमप्लीट दिस, ठीक है। और ওখানে কিন্তু কয়েকজন কিন্তু ভালো ভালো, তুমি তো চিনোই, প্রথম আলো তো চিনো, হে তো চিনো না, আরো কয়েকজন আছে, ঠিক না, দুই তিনটা আছে ভালো ভালো। তো ডেইলির হোমওয়ার্ক ডেইলি একদম আপ টু ডেট থাকবে, গুড উইল বি গুড ফর ইউ, ঠিক আছে না। একটা ফ্লোতে থাকবে সব কিছুটা, তালে তালে শেষ হয়ে যাবে সুন্দর মতো। আর ওদের তো বাই কম্পালশন আমার শেষ করতেই হবে, স্ট্রাকচার আছে, কারণ নাহলে টেস্ট এসে করবে। তো সামহাও মানে আমার হয়ে যাবে, তো তোমারও একটু স্ট্রাকচারে হয়ে যাবে, কোনো চাপে থাকবে না, তাহলে তো একটা টেনশন থাকে শেষ হবে শেষ হবে না। Find the sum of n terms of this series whose nth term is this one. इसका nth term क्या है? 18n square minus 6n plus 5. (18) into summation n square n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। और कितना तक सम करना था इसको? बस n तक ही था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम तो चिंता करते हैं डायरेक्ट लिखे फेले तुम तो चालू करेंगे तो ना, क्या हो रहा है। इसमें क्या है देखो, 18 को हम कॉमन ले सकते हैं एंड देन वी कैन राइट समेशन n स्क्वायर। कारण 18n स्क्वायर माने कि 18 into 1 square plus 18 into 2 square plus 18, तो you can take 18 common, so it is 1 square plus 2 square plus 3 square। समझ रहे हो? तो समेशन में हम ये निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट समेशन को हम अलग अलग कर सकते हैं कि इसको अलग क्लास के इसको अलग क्लास कर सकते हैं ना, आराम से करा যায়। প্লাসই তো করছি আমি, এটা প্লাস তিনটা না করে এটা প্লাস এটা बराबर এগুলো সবগুলো करा जाए आराम से। दैट्स व्हाई सम को स्प्लिट भी कर सकते हैं ऐसे। एंड देन 6 अगर फिर से निकल गया, सो इट्स अ समेशन n, 6 कॉमन आ जाएगा। रुको रुको, समेशन 5 है, ये क्या बनेगा? इसमें सर 5 बाहर निकाल दो। नहीं, इसमें क्या हो रहा है देखो, बार बार 5 ऐड हो रहा है, 5 प्लस 5 प्लस 5, दो बार ऐड करने से कितना होगा? 10, तीन बार n बार 5n, ठीक है ना। इसमें से 5, इसमें से भी निकलता है 5, तो 5 निकल के क्या बनता है? समेशन 1, एंड समेशन 1 इज ऑलवेज n, याद रखना। यहाँ तो बगल में था बोल के कुछ टेंशन नहीं, कुछ और था तो 6 कॉमन गया जो आया, इसमें तो कुछ नहीं है, तो 1 बार बार ऐड होगा, 1 बार बार ऐड होते होते n नंबर से तो n बन जाएगा। तो क्या आ गया अपना? अभी तो बाकी फॉर्मूला है 18 n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 minus 6 into n into n plus 1 by 2 plus 5। You can take something common, n common নিতে পারো, 3 into n plus 1 into 2n plus 1 minus 3 into n plus 1 plus 5। अरे এদিকে ফ্যান লাগবে, এদিকে না দিয়ে আমি এদিকে দিয়ে দিচ্ছি। बस इसी को लोग जैसे सिंपलीफाई करके लिखा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अभी देखो एग्जांपल 48 को देखो, इसको लोग ने कुछ सिंपलीफाई किया, जो भी किया है वो क्वेश्चन देख के हम लोग कर लेंगे जब एग्जाम में आएगा या फिर आगे क्वेश्चंस में जब आएंगे। नेक्स्ट कौन है? द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है। ये क्या है? ये एक एपी है, इसका तो फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसको हमको दिख रहा है कि ये ऐसे निकालने बोला। आप तो हाउ मच बोला है, कुछ बोला है ना, सिंपल ऐसे निकालना चाहिए, एन में रखना है। इसका हमको दिख रहा है कि एपी बन रहा है, लेकिन एपी के ऊपर एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें,
इसका टीएन लिखने का कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि एक पैटर्न दिख रहा है अपने को, ठीक है ना। तो धीरे धीरे तुमको लगेगा कि किसी किसी क्वेश्चन में हम टीएन मतलब nth टर्म क्या हो वो जानने का कोशिश करें। इसका nth टर्म क्या है, एपी का जो nth टर्म है उसका स्क्वायर है। एंड व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एपी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसका स्क्वायर तो हो जाएगा 3n प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 9n स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12, 12n प्लस 4, ये आएगा टीएन। अभी इसके ऊपर समेशन चाहिए अपने को, तो इसका समेशन क्या होगा, Sn इक्वल टू समेशन ऑफ टीएन, क्योंकि इसको अभी तो इजी हो जाएगा, 9 इंटू समेशन एन स्क्वायर। लिखो लिखो, ये वाला खुद से लिखो, बार बार में लिखने से फॉर्मूला भी याद नहीं होगा, ठीक है। यू राइट दिस समेशन, इसके सामने समेशन लगाओ, खोलो पहला वाला जैसा, तो रेकॉर्डिंग होता है, उसने पूरा रेकॉर्डिंग में आगे ले ना, बोर्ड है, হোয়াইট বোর্ড নাহলে মনে করছিলাম তোমরা ফরাইলে রেকর্ডিং পুরোটা সেট রেকর্ডিং হলে তারা তো অর্ধেক সেশনে ঢুকছিল স্মার্ট বোর্ড 12 এর যা স্টার্টিং ডাটে, ঠিক है। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 है, 10 के बाद 12 कैसे हुआ रे, तो गलत लिखा था, 13 होना चाहिए था, 13 मतलब 35 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 13 प्लस ऐसे ऐसे करके डॉट 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 माइनस ए, और बाकी जो अंदर वाला जो सामान है, ये जो अंदर का जो सामान है जिसको हमने अभी हाईलाइट किया हुआ, ये जो माल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अपना एपी में दिखा, यही चाहिए था, इसको हमने निकाल के लाया। कभी कभी एक बार डिफरेंस दी, सेकंड राउंड ऑफ डिफरेंस में जाके एपी दिखता है, ठीक है ना। पहला अभी फिर से इसको माइनस करोगे तो डिफरेंस, हालांकि इसका भी एक शॉर्टकट है, लेकिन उसके लिए थोड़ा बाइनोमियल चाहिए होता है। ऐसे डिफरेंस करते करते 0 आ गया तो रुको, फिर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ऐसे लीडिंग टर्म को देख के, लेकिन उसके लिए फिर बाइनोमियल चाहिए होगा। एनसीआर एनसीएच वो देखेंगे ब्लास्ट में, जब सिलेबस खत्म होगा विल एक्सप्लोर लॉट्स ऑफ शॉर्टकट्स, क्योंकि तब इंटरलिंक्ड होता है बहुत सारे टॉपिक्स। इंटरलिंक्ड वाला शॉर्टकट तो अभी देख नहीं सकते हम लोग, वो बाद में देखना होता है। an इक्वल टू 1 प्लस, ये क्या है, एपी है, उसका फास्ट टोटल टर्म कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना टर्म होगा बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टर्म होगा, n-1, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, अपना फॉर्मूला क्या है तब, n-1/2 2a प्लस n-1, मतलब n-1 तो पहले से था, तो n-1 n-1 फिर से, एंड d इज इक्वल टू 3। तो देखो an निकल गया, अपने को जो चाहिए तो ही निकल गया, काम हो गया अपना, खत्म कहानी, खत्म, फिनिश, शेष। 3n प्लस 2, अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने से करो, नहीं तो मत करो, तुम्हारे ऊपर है, नहीं तो घूमने जाओ, जो मन है वो करो, ठीक है। बोर्ड सर नहीं करेंगे, हम लोग घूमने जाएंगे, तो जाओ। दिस इज नोन एज मेथड ऑफ डिफरेंस। ওয়ানটা তো এটা লাকিলি তোমার এনে 1 ফিরে গেছে দেখে, বাট নরমালি সব অঙ্কে 4 না, ঠিক আছে। প্রথমটা দিয়ে এর লাগে আমি জেনারেল মিডিয়াম ফলের অঙ্কটা দেখবা, সব অঙ্ক করতে না। আর যদি তোমার ধরো এনে কিন্তু হয়ে যাবে, কারণ এটা 3 করে 1 থেকে তুমি স্টার্ট করতে হবে, তাইলে হয়ে যাবে, পুরাটা এপি হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। পরে অ্যাড করো। नेक्स्ट 50, एग्जाम्पल 50 को देखो। इसमें क्या किया है, इसमें ऑब्जर्व द सक्सेसिव डिफरेंस, अच्छा नहीं नहीं अच्छा क्वेश्चन तो अलग है, बोला nth टर्म निकालने के लिए एंड सम अप टू nth टर्म, सम भी निकालना है, चलो देखेंगे, पहले तो nth टर्म निकालते हैं, 22 32 देन 44 देन डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हम डिफरेंस देखते हैं इसमें से, कितने का डिफरेंस है 6, कितने का डिफरेंस है 8, कितने का डिफरेंस है 10। अरे ये भी तो फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड क्यों बोल रहे हैं ये लोग, ये भी तो एपी बन गया फर्स्ट राउंड, सेम ही तो क्वेश्चन है सर। कभी कभी क्या होता है फर्स्ट राउंड में नहीं होता, सेकंड राउंड में होता है, 2 बार, इस टाइप का नहीं दिया क्वेश्चन,
नहीं दिए, सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है। দেখার জন্য, বাট এটাও সেম আগেরটার মতো, এপি এসে গেলে হয়ে যায়, নট নেসেসারি বা এপি না জিপি হলো, অনেক সময় জিপি হলো তাহলে আর দিয়ে গুণ করে मल्टीप्लाई हो, कभी कभी लगता है कि डिफरेंस भी जीपी है, देन आर से मल्टीप्लाई करके फिर करो, ठीक है ना। वही कहानी, मतलब एपी वाला ही कहानी, थोड़ा एपी को जैसे प्रूफ किया था, जीपी को जैसे, जीपी को देखना आर से मल्टीप्लाई करके साइड किया था, ये एपी है बोल के एपी नॉर्मल साइड किया, तो सम ऑफ डिफरेंस में ऐसे क्रिएट होगा, तो मुझे लगा शायद आगे एक क्वेश्चन था शायद, ठीक है। तो ये तो सेम ही है, वही कहानी है, तो दिख जाएगा सेम कहानी है, हूबहू है, डिट्टो है, कर लेना घर में, ठीक है। मैंने सोचा सेकंड राउंड में आएगा कुछ, ठीक है ना। सेकंड राउंड डिफरेंस अगर होता तो हम लोग 2 बार करते, एक सेकंड राउंड का मैं बना देता हूँ, ठीक है ना, बना लेता हूँ, जैसे इसको बना लेता हूँ, मान लो ये 8 है ना, इसको थोड़ा सा अगर मैं क्रिएट किया, 8 आना चाहिए, नहीं मुश्किल हो जाएगा क्रिएट करने में, 8 आना चाहिए दोनों के बीच में गैप, तो कैसे लाऊं, नहीं हो पाएगा। सो दिस इज नोन एज टेलीस्कोपिक मेथड, ठीक है। तो इसको जनरली पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, साइड में हम एक चीज लिख रहा है, क्योंकि ये वी हैव टू लर्न दिस वन, इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्लास 12 में तुमको इंटीग्रेशन में ये एक अच्छा टॉपिक मिल जाएगा, मतलब इसके ऊपर अच्छे खासे काम होगा। मतलब मैथ्स में क्या होता है, अलजेब्रा में एक टॉपिक ही बनता है पार्शियल फ्रैक्शन का, लेकिन यहाँ मतलब बाहर में होता है, फॉरेन अथर का कोई भी उठाओ 12 का कैलकुलस अलजेब्रा 11 का, सो दे विल हैव ए टॉपिक व्हिच इज नोन एज पार्शियल इंटीग्रेशन, लिख दिया मैं, पार्शियल फ्रैक्शन है वो, इंटीग्रेशन में लगता है लेकिन नाम है पार्शियल फ्रैक्शन, तुम्हारा फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, फ्रैक्शन को ही तोड़ देना। अरे फ्रैक्शन तो खुद ही टूटा हुआ है, उसको क्या टूटोगे बेचारा, बेचारा तो खुद से मरा हुआ है, उसको भी तोड़ देगा। इसका टॉपिक ये नाम है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है 1/x × x + 1, अपने को इसको तोड़ना है ऐसे, a/x + b/x + 1, ऐसे तोड़ना है, इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। देखो डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया, छोटा छोटा फैक्टर होगा डिनोमिनेटर में, वी कैन स्प्लिट दिस फैक्टर्स, ठीक है, इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अभी फिलहाल इतना से, क्योंकि इसका भी वेराइटी है 2-3, लेकिन तुम्हारा इतना दोनों में हो जाएगा। जैसे इसको अगर हम लोग करेंगे तो नॉर्मली जो छोटा है वो ऐसे हो जाता है, दिख के हो जाता है, ठीक है ना। नॉर्मली कैसे करते हैं, ये तो आंखों से दिख जाता है, देखो ये एलसीएम को आ जाएगा ना, ये x + 1 - x, एक्सेस कट जाएगा, ऊपर में 1 आ गया, ठीक है। अगर नहीं दिखेगा तो निकालने का शॉर्टकट क्या है, मैं ओरिजिनल मेथड नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ओरिजिनल मेथड आपने को सीखना ही पड़ेगा इंटीग्रेशन में, ये खुद एक बड़ा टॉपिक है, इंटीग्रेशन में एक अच्छा खासा टॉपिक है ये। तो अभी फिलहाल यहाँ जितना जरूरी है उतना देख लो। ए चाहिए तो 1, यहाँ न्यूमरेटर में जो भी होगा 1 जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा इससे छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब यहाँ x का पावर कितना है, नीचे x का पावर कितना है, टोटल x का पावर कितना है नीचे, व्हाट इज द टोटल पावर x इन द डिनोमिनेटर, x² हाईएस्ट पावर, मल्टीप्लाई करने से तो ऊपर उससे कम होना चाहिए, मतलब लीनियर या फिर कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, देन ओनली इट कैन बी डन, अदरवाइज तो हम डिवाइड करके पहले छोटा करेंगे देन पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो जो भी न्यूमरेटर होगा डिवाइडेड बाय, ए के नीचे कौन सा था x, x को नहीं लिखना है, ए के नीचे जो है उसको नहीं लिखना है, बाकी को लिखना है और x के जगह में 0 डालना है, ए का नीचे वाला को 0 कर देना ए के लिए, तो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ तो 1 था तो इसका आंसर 1। बी के लिए क्या करेंगे, सेम जो न्यूमरेटर में हो, बी का नीचे वाला को नहीं लिखेंगे, ए का नीचे वाला को लिखेंगे और बी का नीचे वाला को 0 कर देंगे, वहां से x = कितना आएगा, -1 डालेंगे इसमें, देखो -1 आ गया। ये हो गया अगर अपने को दिखा नहीं, दिख गया तो सही बात है, छोटा मोटा चीज दिख जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो x/x + x × x + 2, अब ये कैसे करें, ये तो दिख नहीं रहा है, मान लो इसका पहले थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, अगर मैं ये दे दूंगा, ये शायद तुम लोग का भी के लिए होगा भी नहीं, मान लो 1, अभी छोटा छोटा ही होगा तुमका, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, मैं जो करता हूँ पहले ये माइनस लिख लेता हूँ, छोटा छोटा चीज ऐसे होता है, पहले माइनस दे देता हूँ, 1 डाल देता हूँ, या फिर 1 भी मत डालो, तुम तुम्हारा मन से खाली रखो, लेकिन बीच में माइनस दे दो एक। अब देखो
क्योंकि माइनस को हम प्लस कर सकते हैं ऐसे करके आराम से, इसलिए हम माइनस देते हैं। सर प्लस क्यों नहीं दिया? क्योंकि माइनस होने से जस्ट ऐसे देने से प्लस हो जाएगा। तो जब हम करेंगे x प्लस 2 माइनस एक्स, कितना आएगा? 2 आएगा, लेकिन वहां क्या है? 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम 1 1 अगर हम 1 1 दे रहे हैं, बीच में माइनस दे रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 2। बोला था ना 2 आ रहा है, तो सामने एक हाफ दे देते हैं, खत्म कहानी। ऊपर 2 आएगा, 2 और वो कैंसिल हो, छोटा मोटा चीज हो जाएगा। अदरवाइज तुम इससे कर सकते हो। बोले सर इससे करके दिखाओ, तो करके देखो। a इक्वल टू a मतलब x वाला 1 बाई a के नीचे वाला नहीं लिखेंगे, x प्लस 2 लिखेंगे, a के नीचे वाला को 0 डालेंगे, हाफ। सर b क्या होगा? करके दिखाओ। चलो ये भी करके दिखाते हैं। b के नीचे x प्लस 2 उसको नहीं डालना है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 2, तो हो जाएगा माइनस हाफ। वही था, देखो हाफ x के ऊपर और यहाँ माइनस हाफ, हमने हाफ कॉमन ले लिया। समझ में आया? तो छोटा छोटा जो चीज़ है अभी फिलहाल के लिए तुम्हारा छोटा चीज़ में ध्यान रखो बस, उससे ज़्यादा होगा नहीं। उससे ज़्यादा अपने को ऐसे भी सीखना होगा, इसका पूरा ही सीखना होगा, मतलब कुछ भी चीज़ हम लोग छोड़ नहीं सकेंगे। क्लास 12 में जब आएंगे इंटीग्रेशन में, वी हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग। पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे थे सीक्वेंशियल सीरीज, उसमें आया स्पेशल सीरीज, उसके अंदर आया टेलीस्कोपिक, उसको करने के लिए अभी सीख रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तुम लोग क्या मतलब क्या समझ के रखते हैं? मतलब बच्चे को जान लगे क्या? कुछ भी पढ़ा रहे हैं सर आप, ये इसके बाद क्या क्या कर रहे हैं, आगे और क्या क्या पढ़ाएंगे आप? ठीक है, अच्छा है, लेकिन दिस मटेरियल इज वेरी स्ट्रक्चर्ड। ऐसा नहीं मैं इसमें हूँ बोली, मैं बोला ना मैंने 4 मटेरियल मैंने किया है, बट दिस इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, हमको बहुत अच्छा लगा। स्पेशली सीक्वेंशियल सीरीज एकदम दिल को छू दिया आपने, इतना डिटेल में दिया, इतना बारीकी से दिया हुआ है, और साथ में मैंने कुछ ऐड किया है, तो ये तभी जो बना कॉम्पैक्ट, मतलब अभी सीक्वेंशियल सीरीज में आराम से हो जाएगा। एग्जाम में जाना है, ये सब अपने को ऐसे ही आता है। ये हो गया इस टाइप का। अब इसमें देखो बेटा क्या होता है, इस टाइप का जब स्ट्रक्चर बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको टेलीस्कोपिक क्यों होता है? अपने को दिख गया कि टेलीस्कोप है ये। टेलीस्कोप मतलब अभी देखो इसको जब ओपन करोगे T1 कैसे दिखेगा, और थोड़ा दिखेगा, एक ओपन करके देखना होता है। टेलीस्कोप में तो हम लोग जूम करके देखते हैं ना, एक बार जूम करना होगा, बाकी तुमको समझ में आ जाएगा। T2 डालेंगे तो क्या होगा, T3 डालेंगे तो क्या होगा, T4 डालेंगे तो क्या होगा, और ना लिखूं? थैंक यू सर, मैं तो मैं लिखते जाता आज तो। ठीक है, अभी देखो दिख रहा है अभी, जब मैं प्लास करूंगा ये सब प्लास करने से अपने ऐसे ना गया, गचेंग 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 गचेंग, कौन सा बचेगा? गचेंग बचेगा। ठीक है, वो बोला कि गचेंग बचेगा मैंने, ठीक है गचेंग बचा। तो क्या हो गया, n+1 एलसीएम करने से ये हो गया अपना जो है वो मैंने एलसीएम किया। समझ में आया? इसको कहते हैं टेलीस्कोपिक। तो हमेशा ये हम लोग गेचिंग 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 अच्छा तो लगता है, लेकिन हमेशा हम लोग गेचिंग गेचिंग करते करते एग्जाम में गेचिंग गेचिंग होगा, तो इसलिए हम लोग इसका गेचिंग गेचिंग को कुछ एक शॉर्टकट दे देते हैं नाम। जैसे अगर मेरा टीएन जो बना, टेलीस्कोपिक में मैं टी लिख रहा हूँ, ठीक है, ए भी लिख सकते हो, वो लोग यही लिखता है, मैं पता नहीं क्यों लिखता हूँ मैं, मेरा क्योंकि मैंने टी से किया तो मेरा आदत बन गई, इसको हटाता हूँ, आदत चेंज करना। क्या करेगा, जमाना बदल गया तो एडोप्टेशन करना ही होगा। an इक्वल टू कुछ इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे fr माइनस fr+1 बन रहा है कि नहीं? हाँ बन रहा है, मतलब fn भी मान सकते हो, जैसे ये fn है 1/n, यहाँ क्या किया, n की जगह में n+1 डाल दिया। अगर इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा और उसका आपने को समेशन निकालना है a से लेके b तक r इक्वल टू, तो उसमें होगा क्या बेटा, इसका आंसर सिर्फ लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, लोअर लिमिट पहला वाला में लग जाएगा fa
माइनस अपर लिमिट ऊपर वाला में लग जाएगा, खत्म कहानी है आंसर। बाकी बीच वाला सब गेचिंग 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 हो जाएगा। समझ में आया? ये अपने को जानना है मेन कहानी। अच्छा इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब ये है टेलीस्कोपिक, कुछ स्ट्रक्चर बनेगा एफ आर माइनस एफ आर प्लस वन, ठीक है ना। फिर हम लोग देखेंगे उसको जब करेंगे कैंसिल होगा। हाँ फ्रैक्शन और नाम दिया, फ्रैक्शन ये भी हो सकता है, कुछ भी और भी, अभी देखना आगे चल के इसका थोड़ा और डायल्यूटेड वर्जन हमको मिल जाएगा। कभी कभी क्या हो जाता है बेचा, अभी तो हो गया, अभी थोड़ी इतना में थोड़ी होगा ट्विस्ट एंड टर्न होगा, देयर विल बी लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न। मान लो ये है डायरेक्ट एफ आर के बाद एफ आर प्लस टू, वन बाई एन माइनस वन बाई एन प्लस टू, जैसे ये वाला टू देखे हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे ये वाला वन बाई एफ आर माइनस एफ आर प्लस टू, ये तो प्लस टू हो गया। अब इस प्लस टू के लिए तो फॉर्मूला नहीं है, तब इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग करते हैं। अब इसको अगर करना है तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग एफ आर माइनस एफ आर प्लस वन प्लस एफ आर प्लस वन माइनस एफ आर प्लस टू, क्योंकि एक एक का अगर डिफरेंस होता है तो अपने को फायदा है। अब फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक का डिफरेंस में फॉर्मूला है अपने पास डायरेक्ट, तो अभी हम लोग इसके अंदर समेशन लगा देते हैं ए से बी तक। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के साथ एक समेशन लगाएंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला है ए से बी तक, फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे ए से बी तक। इसमें क्या फॉर्मूला होगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, इसमें फॉर्मूला होगा लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, खत्म कहानी। बाकी ये लिखने का जरूरत नहीं, यहाँ मतलब एक छोट 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 के आएगा, यहाँ पर भी कटेगा, गिचिंग गिचिंग होगा, लेकिन थोड़ा देर बाद गिचिंग पॉज देके गिचिंग, फिर पॉज गिचिंग 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 नहीं होगा, तुम जो बोल रहे समझा। तो दीज आर अच्छा चीज है, अभी तो तुम समझ सकते हो, थ्री भी होगा कुछ भी होगा, नाउ यू कैन डू कुछ भी होगा, एक एक का डिफरेंस भी उल्टा भी होता है। क्वेश्चन में ऐसा रहेगा एफ आर प्लस वन माइनस एफ आर, तो तुम एक माइनस कॉमन लेके स्ट्रक्चर में बना लेना, तुमको स्ट्रक्चर में लाना होगा, देन यू कैन अप्लाई शॉर्टकट। जो भी होगा माइनस कॉमन लेके लिखा, और कुछ और होगा तो उसमें नहीं होगा, फिर प्लस होने से नहीं होगा, क्योंकि तब तो कैंसिल ही नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान देना, इसी को यहाँ पर लिखा है स्टार्टिंग में, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड क्या लिखा है। देखो एक क्वेश्चन में उठा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 51। घर में और एक बार कर लेना, घर में जाके ये सब क्वेश्चन या फिर जो छूट गया, यू हैव टू डू ऑल दिस क्वेश्चंस, ठीक है। एनसीईआरटी और कर लो फटाफट, अभी आरएस तुम लोग को घर में करना होगा, ठीक है ना, छोड़ना नहीं, ठीक है। मैं उन लोग को भी बोलता हूँ, आरएस नहीं बोलता हूँ, कोई भी एक बेसिक बुक कर लेना चाहिए, कोई भी एक बेसिक मटेरियल तो करो, साथ में कुछ बेसिक बुक एक कर लो, जैसे अपना हम लोग कर रहे थे आरएस वाले, और अपना जो चैतन्य वाला मटेरियल अगर उसको रखोगे तो तुम कंटिन्यू कर सकते हो, आगे का जरूरत नहीं, जितना हम लोग ने दे दिया, जैसे ये है सीक्वेंस जो करते रहो, जो हम लोग करा देते, देखना अभी हो जाएगा, दोनों मिला सब मिला के सेम ही है, क्वेश्चंस में कुछ अंतर नहीं आएगा। लेकिन जैसे इसको हम लोग कर रहे हैं अभी, तो इसको पूरा क्लियर करना, क्योंकि इसमें बहुत है, हमने तो दिया नहीं ना आगे। स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 1 है बोर्ड के लिए, स्टेप 1 इज फॉर बोर्ड एंड तुम्हारा आरएस ये सब का एग्जाम्पल लीजिए। तुम देखना स्टेप 1 में क्वेश्चन है 34, स्टेप 2 में स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद PYQ चालू करता है। 52 नॉर्मल क्वेश्चन है जेई का, अपना उससे भी ज़्यादा होगा, लेकिन हम लोग हमें सब नहीं करते, इसमें से टिक कर करके करते। PYQ है अपना, देखो टोटल 128 है स्टेप 2 में जेई मेन के लिए। अभी स्टेप 3 है, स्टेप 3 में तो एग्जाम्पल ये 50 मतलब अंदर में, फिर एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा, स्टेप ये सब तो तुमको डायरेक्ट मिल जाएगा स्कैन करके, ये ऐप नहीं चाहिए, ऐप तुम स्कैन करो, कोई भी स्कैन करके दिख जाएगा। स्टेप 3 वाला एडवांस वाला में सब में QR लगा हुआ है, स्कैन कर लो सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ सोल्यूशन मज़ा नहीं आता है देख के, ठीक है ना, तो होगा तो पूछ लेना, ठीक है ना। फिफ्टी वन क्या है, 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5
प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना है। तुम्हें थोड़ा देर बाद तुम्हें ऐसे ही पता चलेगा यार ये तो मतलब कुछ क्वेश्चंस कर लोगे यार ये तो टेलीस्कोपिक वाला का फील आएगा कि हाँ ये तो टेलीस्कोपिक वाला बन रहा है। इसका भी Tn क्या होगा, nth टर्म क्या होगा। इसका पहला टर्म क्या है देखो 1 into 3, दूसरा टर्म में क्या है 3 into 5, तीसरा टर्म में क्या है 5। अच्छा ये जो फर्स्ट टर्म है इसका ये कुछ AP बन रहा है। फिर दूसरा या फिर तुम सोच सकते हो दीज आर ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। पहला ऑड नंबर क्या होता है 2n-1 होता है पहला ऑड नंबर। अगर हम 2n-1 करेंगे तो 1 से स्टार्ट होता है, 2n+1 करने से 3 से स्टार्ट होता है। हमने वो जनरल फॉर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में हमने जब बनाया था बोला था, क्योंकि यहाँ n तो नेचुरल नंबर है, 0 नहीं होगा 1, तो यहाँ पर 2n-1 हमेशा 1 से चालू होगा और 2n+1 हमेशा 3 से चालू होगा। ठीक है ना, तो ये 2n-1 ही आ रहा है सब ऑड, और बगल वाला 2n+1 है, तो तुमको दिख जाएगा सर 2n-1 इंटू 2n+1। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग AP से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये पहला टर्म क्या है AP का 1, 3, 5, 7 है, तो AP का nth टर्म क्या होगा, पहला टर्म होगा AP का nth टर्म क्या होगा, the first term will be, यहाँ पर जो पहला टर्म होगा that will be nth term of AP, then nth term plus 2, क्योंकि इससे 2 ज्यादा होता है। तो nth टर्म क्या है इसका A plus n-1 into D, कितना आ रहा है 2n-2, 2n-1। अब इसके साथ +2 कर दो, हालांकि नहीं चाहिए, दिखना चाहिए, दिख गया, वहां से भी हम लोग कर सकते हैं। वो भी देख लो क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में उसका भी जरूरत होगा। एक को अगर तुम तुम देख लो अगर पहला वाला मिल जाएगा अपने को, दूसरा तो उससे 2 ज्यादा है, तो पहला वाला हम AP से निकाल सकते हैं। अब इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं 2 पार्ट में। कैसे तोड़ते हैं हम लोग, 2n-1 हमने बोला था बीच में माइनस देंगे 2n+1। अब अगर नॉर्मल करेंगे तो क्या होगा, ऐसे रखने से क्या क्या मुश्किल हो रहा है, अगर ऐसे ही रख दिया व्हाट इज द मुश्किल ऐसे रखने में, कितना आ रहा है ऊपर में, কত হয় এটা করলে কি আসছে, কমপ্লিট হচ্ছে না কিছু দিতে হবে আমার কাজ করতে। কি জানি উপরে কিটা এর এলসিএম কইরা তো 2n+1 -1 2 আইলো কেমন -2 এদুর ক্যালকুলেশন মনে করে না করতে হলে পড়ে গেছে বাচ্চা আগুনিতে। হ্যাঁ ठीक है, अभी इसमें और इसमें क्या अंतर है देखो। तो ये अगर FR है, तुम देखो अगर ये मैं FR मानूं, क्या ये FR+1 है, देखते हैं 2 into R+1 -1, R के जगह में R+1 डालना है, 2R+2 -1। अरे हाँ तो ये FR होने से FR+1 है, बस हो गया। तो कहाँ तक शाम करना था बेटा, बोलो भाई कहाँ तक था, अरे n तक ही था, चयन ही लिखना है। तो फिर Tn हो जाएगा अपना समेशन बन जाएगा समेशन, तो हाफ बाहर आ जाएगा, तो इसमें पहला टर्म बनेगा 1 से स्टार्ट हो या n तक गया, तो यहाँ पर 1 ही रह जाएगा, ये 1/2n-1। टू इंटू 1 - 1 कितना होगा, 1 माइनस, और वहां क्या हो जाएगा, बस हो गया। अभी कर लो, ये हो गया अपना ऐसा। यहाँ पर भी इसी तरीके से किया, यहाँ पर वो लोग एक्सपांड किया, बट यू अंडरस्टैंड नाउ देयर इज नो नीड टू एक्सपांड। ठीक है ना, 1-2 और एक्सपांड करा रहे ये लोग ताकि बच्चे समझ में आ जाए, वो लोग भी एक्सपांड नहीं करते। घर में करना होगा इसे, इस सब टाइप का क्वेश्चंस को घर में करो, क्योंकि पहला बार है तो मैं दिखा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस। हालांकि मुझे नहीं दिखाने से सही था, लेकिन कुछ नहीं दिखाने से तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 52 दिखाता हूँ मैं, 53, 50। अच्छा के फैमिली भी एक्सप्लेन करना है, अरे यार इसमें भी एक शॉर्टकट है।
अच्छा 52 दिखा के आई विल डिस्कस द शॉर्टकट। 53 54 तुम लोग करो, फिर मैं एक्सरसाइज में जाऊंगा। आज थोड़ा सा लंबा खींचूंगा, देखता हूँ कितना देर चल सकता है, ठीक है। आज फिर संडे, कल होगा 8:30 बजे है रात को। खत्म तो हमारा जागा नहीं है इसके पास। सम ऑफ n टर्म्स क्या बोला है अभी? 1/1 into 2 into 3 plus 1/2 into 3 into 4 plus 1/3 into 4 into 5 plus dot 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 1/n into n plus 1 into n plus 2। ठीक है, अब इसका भी tn अपने को दिख रहा है, tn तो डायरेक्ट लिख दिया ना टर्म में। अरे tn तो लिखा हुआ है 1/n into n plus 1, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है। अरे अब इसको भी हम लोग 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। अब इसको सोचने में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि 3 3 है, तो इसके लिए हम लोग इसका वो जो फॉर्मूला सीखे थे हम लोग क्या करेंगे, इसको a/n b/n plus 1 पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड लगा देंगे, जो हम लोग आगे बहुत अच्छी तरह सीखेंगे 11 में। अभी हम लोग अपना काम यहाँ तक चलने के लिए सीख लिया, और जो हमने सीखा एक्चुअल मेथड नहीं, और शॉर्टकट सीखा है हमने। तो फिलहाल काम चलाने के लिए मैं इसी में आगे बढ़ रहा हूँ। ए कितना हो जाएगा बोलो तो? এর জন্য কি করব বলো তো? উপরে কি হবে? এখানে কি দেব উপরে? উপরে যেটা আছে সেটাই থাকবো 1, নিচে আর n এর জায়গায় কি বসাবো? 0 বসাবো। তাহলে কত আসবে आंसर? हाफ। ये आ गया। b क्या हो जाएगा? 1/n इनटू, बस बस तुम लोग करो, अभी मैं पहुंच। a कितना आया? हाफ। ओके, हाफ बाई n। नेक्स्ट b -1/n plus 1, फिर c 2/c 2 কেমনে হয় রে? 2 কেমনে হবে? তো সব দিন যা বলবো ডিনোমিনেটরে বলবো, ফিটা দেব হবে কেমনে 2 হয়? কত হয় রে c? -2 plus 1 হাফ আইব এটা। ফিটা বুঝনি? এগুলো আর ওইখানে পাবে না, ওইখানে তো সিরিয়াস, এখানে এগুলো বলে ওই কমেডি টমেডি করার জন্য আমরা একদিন টাইম দিয়ে দেবো, একদিন এসে ওকে বকা টকা দেবো, যদি দেখি যে একদিন কমেডি করতে হবে, এখানে তো হবে না। अच्छा इसमें क्या हो रहा है? अपने को तो वो फॉर्मूला चाहिए, वो फॉर्मूला में हो जाएगा, नहीं तो लिखना होगा। अच्छा देखते हैं, तो एक बार सोचो तो, अगर ये मेरा एफ आर है तो एफ आर प्लस 1 कौन सा है? इधर तो ना, इधर तो 2। अगर ये मेरा एफ आर है तो एफ आर प्लस 1 ये है। अच्छा अगर मैं इसको एक साथ रखा हूं तो मैंने क्या छोड़ दिया? हो गया, ये एफ आर होने से ये एफ आर प्लस 1 ऐसे नहीं? तो बस ऐसे। ये लिखने का फायदा क्या है, बिना लिख के भी होगा, तुम तब वो लिख के फिर काटना होगा, खिचिंग 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 करते करते दिन चला जाएगा थोड़ा सा। तो समेशन इसका भी 1 से था ना, 1 से अंत तक ही है। इधर हो, ये अंकड़ा गुणनते अप टू n टर्म्स थे। तो इसका भी क्या हो जाएगा जब हम लोग समेशन लेंगे Sn, ये Tn था, तो पहला टर्म में तो 1 बन जाएगा, तो 1/1 1 माइनस इसमें तो n प्लस 1 माइनस इसमें अभी 1 बैठेगा, हाफ लोअर लिमिट, फिर इसमें अपर लिमिट। कभी कभी अपर लिमिट इन्फिनिटी होता है, तो ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाता है। इस टाइप का समेशन सीरीज देके बोलेगा इन्फिनिटी तक सम, तब और भी आसान हो जाता है। इन्फिनिटी में और आसान क्यों? क्योंकि ये सब इन्फिनिटी 1 पे इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, अपर लिमिट सब 0 हो जाएगा, तो इसमें बहुत और आसान हो जाता है, सिर्फ लोअर लिमिट रहता है। चलो, एक तो पॉल फैमिली है, पॉल फैमिली है ना, पॉल फैमिली है कि नहीं? पाल फैमिली, पॉल फैमिली, तुम्हें की पालने की? तो तुम्हें तो पालना, पाल फैमिली तो हम लोग
तुम कौन सा फैमिली है? भौमिक फैमिली। तुम्हें बोनिक बोनिक फैमिली, ठीक है। और एक फैमिली है के फैमिली, अभी आ रहा है। तुम लोग सोचा मैंने ऐसे ही बोला मजाक से, अभी आ रहा है के फैमिली, एक शॉर्टकट है। थोड़ा इसका देख लो, कहाँ है के फैमिली वाला? फैमिली तो मैं बोल दूंगा, लेकिन एग्जांपल मेरे को याद नहीं है। एग्जांपल क्वेश्चन देखने से याद आता है। क्या इसमें नहीं है के फैमिली? हे भगवान, हाँ है के फैमिली इन सीक्वेंस सीरीज। जैसे के फैमिली के एक स्टैंडर्ड बच्चा को उठाता हूँ, सबसे स्टैंडर्ड बच्चा, ठीक है ना। जैसे भौमिक फैमिली का सबसे गंदा बच्चा, लेकिन के फैमिली का सबसे अच्छा बच्चा को उठाता हूँ। के फैमिली देखो, इसको के फैमिली क्यों लिखा है? नाम दिया है, मतलब नाम देने से क्या होता है, बच्चे लोग को कॉन्फिडेंस रहता है करने के लिए, ठीक। इसको कहते हैं के फैमिली। नहीं है, ये भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। दो क्वेश्चंस मैंने घर के लिए छोड़ा, ठीक है ना। एक देखना प्रोडक्ट फॉर्मेट में, फाई है मतलब प्रोडक्ट है, ठीक है। आप प्रिंट आउट करो ना, ये तो है। नाउ यू गेट द मटेरियल, आइदर मटेरियल या फिर जेरॉक्स। जेरॉक्स के लिए होने से मैं बोल दूंगा जेरॉक्स का कितना। आप प्रिंट आउट করবে না আর কি, তুমি আর করে দিও না। आइदर यू विल गेट प्रिंटेड मटेरियल, अदरवाइज मैं जेरॉक्स का इंतजाम कर दूंगा। जेरॉक्स का जितना मिनिमम खर्चा आएगा, ठीक है। के फैमिली, के फैमिली का एक स्टैंडर्ड बच्चा ही है, मान लो r बाई r टू द पावर 4 माइनस r स्क्वायर प्लस 1। समेशन करने बोला है, n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक। r इक्वल टू इंफिनिटी देने से थोड़ा इजी हो गया, आगे का कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। जैसे वो टेलीस्कोपिक में आगे का पार्ट 0 हो जाता है, इसलिए मैंने लिया। कुछ भी हो सकता है, 1 से 10 भी हो सकता है। लेकिन ये जो बच्चा है, जैसे इसको, इस बच्चे को देखो, क्या इसका फैक्टराइजेशन हम लोग क्लास 10 में किया था? तुम्हें तो ना ही क्यों, तुम्हारे बोला ना भौमिक फैमिली करता है, तब আর লেখো মায়াপুরে x প্লাস প্লাস সরি প্লাস করেছিলাম ক্লাস 10 এ इसको फैक्टराइज। हां तो কিভাবে फैक्टराइज করবে? धुलाई देंगे सबको में, धुलाई देंगे, धुलाई देंगे, धुलाई देंगे सबको में, धुलाई देंगे। হ্যাঁ, এজন্য তো ধুলাই দিয়েছিল, আমি তো কিছু বলছি। ধুলাই देंगे, धुलाई देंगे, धुलाई देंगे। काफी स्टैंडर्ड आर एस बगल में है। क्लास 10 का बुक अगर उन्हें दिखा दूंगा, फैक्टराइजेशन में था, ठीक है ना, इस टाइप का। वो लास्ट का एक दो क्वेश्चंस था। না আরে তুমি কিভাবে ডিনাই ডিনাই করবে কিভাবে? আমি পড়েছি তো, তুমি ডিনাই করবে কিভাবে? ওকে বলা হলে তো তুমি ডিনাই করতে পারবে, তুমি তো আমার সাথে এটাও পারবে না। हे कोई तो वो सारे को रही तो मैं क्या कर सकता? देखो, तो ये इसी से के फैमिली का नाम बनता है एक्चुअली। ये एक स्टैंडर्ड बच्चा क्यों है? क्योंकि इसका तो डायरेक्ट हो गया। बहुत सारे के फैमिली का भी फैक्टराइज होता है, लेकिन अपने को दिखता नहीं है। तो जैसे इसमें देखो, मान लो हम लोग इसको क्या करते हैं, अभी इसी वाला क्वेश्चन को हम उठाते हैं, r डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन हो गया अभी, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन हमने नहीं किया, लेकिन हम अगर इस टाइप में लिखेंगे इसको, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं? देखो तो क्या लिखा है एक्स्ट्रा? पार्शियल फ्रैक्शन देखा बेटा, মাঝখানে ম্যানেজ বাইছে পার্शियल फ्रैक्शन কিছু নেই, বাট আমি কোয়াড্রেটিকের ফরম্যাটটা ওনা দেখাইতেছি না তোমাদের, বাট ये बेसिक फॉर्मेट है। तुम देखो एलसीएम करो, क्या एक्स्ट्रा हुआ क्या नहीं हुआ, लिख सकता है कि नहीं हम लोग? जब हम करेंगे क्वाड्रेटिक एलसीएम कर ले, क्या आएगा ऊपर, क्या आएगा एलसीएम कर ले, কত একটা ওয়ার্ড গিয়ার যাতে না চলে, একটা ওয়ার্ড ওয়ার্ড কি আইবো উপরে, বাস স্যার এটা আইবো। নাম্বারটা কি?
है কি রে r স্কয়ার প্লাস r প্লাস 1 মাইনাস r স্কয়ার প্লাস r মাইনাস 1 তো r স্কয়ার স্কয়ার কেটে যাচ্ছে r প্লাস r 2r আসবে বাট উপরে কয়টা আছে একটা তো আমার আসছে দুটো r তো আই উইল পুট हाफ ठीक है अब उसमें क्या फायदा होगा इस फैमिली को देखो इस बच्चे को देखो ये क्या है 1/r इंटू आर माइनस 1 इंटू आर ये बच्चा क्या है 1/r इंटू आर प्लस 1 प्लस आर अगर ये एफ आर है तो ये देखो एफ आर प्लस 1 दिख रहा है कि नहीं दिखा तुम देखो आर की जगह में आर प्लस 1 डालो ये आएगा आर की जगह में आर प्लस 1 डाला ये आ गया आर की जगह में आर प्लस 1 माइनस 1 ये आ गया तो बेसिकली क्या है ये भी अपना वही बन गया इसके सामने समेशन लगाना था ये 30n तो अब एसएन क्या हो जाएगा हाफ इंटू इसमें लोअर लिमिट लगेगा लोअर लिमिट कितना है 1 तो 1 माइनस 1 0 1 माइनस अपर लिमिट लगेगा इसमें अपर लिमिट मतलब इन्फिनिटी 0 तो आंसर हो गया हाफ खत्म कहानी ठीक है तो क्या था मुश्किल यहाँ नहीं है ये तो समझ में आ गया ये आ जाएगा बच्चे लोग को क्योंकि टेलीस्कोपिक हमने दिखा दिया अभी इस टाइप को लेकिन मुश्किल है कि दिखता नहीं है एग्जाम में सर के फैमिली अभी तुमको दिखना चाहिए मतलब बाई क्वाड्रेटिक होगा ऊपर में आर होगा देखने से इसका फैक्टराइजेशन का याद आना चाहिए ऊपर से ये भी कंफ्यूजिंग है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तुमको डेफिनेट इंटीग्रल में मिलेगा और एक चैप्टर में और इसके साथ ये बच्चे लोग कंफ्यूज होता है कि डेफिनेट लगाए ना ये लगाए तो हम जब डेफिनेट कराएंगे देन आई विल एक्सप्लेन क्या है डिफरेंस इन दोनों के बीच में आई विल शो यू दैट डिफरेंस ठीक है ना तब आई विल टेक द रेफरेंस अभी तो उसका बारे में बात करिए फाइन उसका कुछ पता ही नहीं आपने क्या है डेफिनेट इंटीग्रल समझ में आ गया अभी देखो इसी को हम लोग के फैमिली क्यों कह रहे हैं इसी को हम लोग के फैमिली कह रहे हैं के फैमिली का जो स्टैंडर्ड जैसे पॉल सिग्नेचर है ना के फैमिली का जो सिग्नेचर है वो इस कुछ टाइप का बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 2c माइनस के स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर आई थिंक अगर मैंने सही किया है हालांकि ये सब का ज़रूरत नहीं होता है लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होने से 2c माइनस के स्क्वायर नहीं है इसमें के है आइडिया अब तुमको पता चल जाएगा क्या है स्क्वायर नहीं है 4 है स्क्वायर वाला गलत दिया ये 4 है मतलब स्क्वायर होने से भी हो जाएगा लेकिन स्क्वायर मेरा काम का नहीं है मेरा काम का है ये ठीक है ना यहाँ 8 डालो x डालो कुछ भी डालो इसका हमेशा फैक्टराइजेशन होता है इस टाइप का बाई क्वाड्रेट का हमेशा फैक्टराइजेशन होता है इसलिए इसको कहते हैं के फैमिली क्या कहते हैं के फैमिली देखो इसका क्यों होता है तुम देख सकते हो तो दिस इज द इम्पोर्टेंट के फैमिली का सिग्नेचर है ये ठीक है ना इसको देख के समझ में आ रही है के फैमिली मतलब ये तो फैक्टराइज हो गया तो क्या हो जाएगा इसको अगर तुम करोगे 2cx स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अब इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस सी होल स्क्वायर माइनस इसलिए मैं बोला था स्क्वायर चाहिए नहीं तो कैसे होगा वहाँ मैंने गलत लिखा के एक्स का होल स्क्वायर होगा ठीक है ना के स्क्वायर चाहिए होगा तो अब इसको जो फैक्टराइज करोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी और बनता है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस सी ठीक है अपना क्वेश्चन में क्या होता है देखो ये फैक्टराइज हो गया दो फैक्टर ये होगा ही होगा इसका अपना जो था उसमें के का वैल्यू कितना था 1 के फैमिली मतलब अपना जो देखो अल्टीमेटली के है वो एक्स का वाला कोफिशिएंट के ऊपर इसका नाम हुआ है बोले सर सी फैमिली भी कह सकते थे लेकिन नाम दिया के कहने का इसमें अपना वाला में के 1 था सी भी 1 था लेकिन हम लोग के 1 वाला फैमिली को हम लोग टच किए इसको ठीक है ना अपना वाला क्वेश्चन जो था के इक्वल टू 1 वाला था समझ में आ गया कैसे वो करना है इसको अब इस फैमिली के और एक बच्चे को देखते हैं हम लोग जैसे ये वाला बच्चा कौन सा वाला बच्चा r इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक कैसे ठंडा लगे हालांकि इजीली दिख जाता है अपने को देखो अगर फैक्टराइजेशन दिख जाएगा तो इजी है तुमको अगर दिखना चाहिए कि फैक्टराइजेशन होगा नहीं तो तुम c और k निकालो
आइदर इस फैमिली के साथ इसको मैचिंग करके सी और के निकालो, या फिर दिख लो, तुम्हें दिख जाएगा कि यार इसका तो दिख गया। जैसे इसका देखो आर स्क्वायर या 3 स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 6r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर लिख सकते हो। तो फिर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2r का होल स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस बी। अगर दिख जाएगा सही है, मान लो दिखा नहीं तुमको एग्जाम में, दिखा नहीं, या फिर कुछ और कॉम्प्लिकेटेड था दिखा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उस फैमिली के साथ मैच कराता है। इस फैमिली का परदादा के साथ ये नया बच्चा को मिलाता है। आओ तुम अपना परदादा के पास जाओ, ठीक है। तो परदादा ने बोला था सी स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा, तो सी इक्वल टू प्लस माइनस 3 कोई एक होगा, अपने को नहीं पता अभी तक। और 2c माइनस के स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए 2। अगर तुम प्लस 3 लोगे तो के स्क्वायर हो जाएगा 4, हाँ के हो जाएगा तब प्लस माइनस 2, प्लस 2 ही लेना है, माइनस 2 वाला फैमिली बनते नहीं इसमें से। और अगर माइनस 3 लोगे तो फिर माइनस 8 हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 8 हो तो होगा नहीं। तो क्या फॉर्मूला है, क्या आया वैल्यू, c इक्वल टू प्लस 3 लेना पड़ रहा है और k इक्वल टू 2। अगर इस टाइप का फैमिली हो जाएगा तो अपने को पता है, तो क्या बनता है, ये आर स्क्वायर प्लस के वाला बच्चा 2r प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, ये बनेगा, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन होने के बाद ऊपर आ रहे। अब जब खोलेंगे तो क्या होगा, जब मैं लिखूंगा आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 माइनस 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 2r, अब क्या एक्स्ट्रा हुआ, हुआ नहीं हुआ एक्स्ट्रा, এখন কিছু এক্সট্রা আছে, মাইনাস 4 তাহলে প্লাস 4 তাহলে 1/4, ठीक है। अब देखते हैं कि ये एफ आर है और ये क्या है, एफ आर प्लस और एफ आर होने से अपना टेलीस्कोपिक वाला अच्छी तरह काम करेगा। ये आर इंटू आर माइनस 2 है, ये है आर इंटू आर प्लस 2। अच्छा तो ये अगर एफ आर है तो ये एफ आर प्लस 2 है रे बाबा, गड़बड़ हो गया रे बाबा, और बीच में माइनस है, तो अपने को पता है इसका भी डील करना आता है अपने को। क्या करते हैं हम लोग इसको डील कैसे करते हैं बेटा, एक एफ आर माइनस 1 इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, एफ आर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा समेशन 1/4 बाहर आ जाएगा। हम लोग इसको लिखेंगे एफ आर माइनस एफ आर माइनस 1 प्लस एफ आर सॉरी एफ आर प्लस 1 प्लस एफ आर प्लस 1 माइनस एफ आर प्लस 1/4। अपना लोअर लिमिट किस पे बैठेगा, इसमें एफ आर में। अच्छा एफ आर प्लस 1 चाहिए होगा, ठीक है ना, क्योंकि अपने पास एफ आर प्लस 1 नहीं है। एफ आर प्लस 1 क्या होगा, 1 बाई आर के जगह में आर प्लस 1, आर प्लस 1 माइनस 1, आर माइनस 1 प्लस 1, इस टाइप का है अपना एफ आर प्लस 1, क्योंकि आर के जगह में आर प्लस 1 डाल दिया, ठीक है ना। आर के जगह में आर, क्योंकि क्यों निकाल के रखा है, क्योंकि अपने को चाहिए होगा, क्योंकि एफ आर प्लस 1 में हम वैल्यू डालेंगे, तो एफ आर प्लस 1 नहीं पता तो कैसे होगा। अपने को एफ आर मालूम है और एफ आर प्लस 2 मालूम है, ये एफ आर प्लस 2 एफ आर है, और एफ आर प्लस 1 क्या है वो जानना पड़ेगा। आर के जगह में आर प्लस 1 डाल दिया, खत्म कहानी। ये बन गया आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो बन गया आर स्क्वायर, ये है अपना एफ आर प्लस 1। अब इसमें लोअर लिमिट डालना है, इसमें 1 डालना है, तो इसमें 1 डालोगे तो 1/1 प्लस 1 है, 0 आ रहा है क्या, कैसे 0 आएगा, अरे ये तो 0 आ रहा है। अरे 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 ये प्लस से था रे बेटा, ये 3 है, सॉरी, ठीक है। तभी अगर हम लोग यहाँ पर भी प्लस 3 होगा तो ये भी गलत हो गया होगा, तो प्लस 2 होगा, ये माइनस 1 प्लस 3, ओके। अभी अगर हम 1 डाल लेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 2, तो हो जाएगा 1/2 माइनस, इसमें इन्फिनिटी डालेंगे तो 0, इन्फिनिटी दे दिया तो थोड़ा हल्का हो गया, और इसमें फिर क्या डालेंगे 1, तो 1/3 हो जाएगा, माइनस एफ आर प्लस 2 में इन्फिनिटी डालेंगे तो ये फिर से 0, ये हो गया आपका आंसर 1/4 इंटू 5/6 दैट इज 5/24। क्या फैमिली दिख गया,
या फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग, ट्यूसडे को ज्वाइन ना करके तुम लोग सैटरडे को भी ज्वाइन करेंगे। ट्यूसडे इसी का क्वेश्चन होगा, इसी का अगर थ्योरी अपना देखते खत्म होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो जाके फायदा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ का क्वेश्चन फिर जमेगा नहीं। एकदम सिंक्रोनाइज हो जाने से सही था, या फिर एक क्लास आगे पीछे भी होता है, 2-3 क्लास पीछे हो जाएगा। देखता हूँ मैं कितना हो पाता है। अभी भी बहुत कुछ बोलना है इसमें, लॉगरिथम है, लॉगरिथम इक्वेशन से, इक्वेशन से सीरीज है, फिर जाके खत्म होगा। ठीक है, हो गया ये। अभी आ जाओ एक्सरसाइज में, कम टू एक्सरसाइज 7.3। स्पेशल सीरीज हो गया। अभी जो आ रहा है, अभी जो आएगा नेक्स्ट लॉगरिथम आएगा, ई का सीरीज, लॉग का सीरीज, वो अलग है। इस टाइप का जो स्पेशल सीरीज क्या था, मेथड ऑफ डिफरेंस था। सिंगल डिफरेंस भी हो सकता है, डबल डिफरेंस भी हो सकता है। डिफरेंस होके एपी भी बन सकता है, जीपी भी बन सकता है, वो डिपेंड करेगा। तब हम वो एपी जीपी वाला जो प्रूफ है उससे आगे बढ़ेंगे। फिर हमने देखा था टेलीस्कोपिक वाला मेथड, फिर उसमें हमने के फैमिली भी एक शॉर्ट कर दिया। कौन सा क्वेश्चन उठाओगे? सारे क्वेश्चन उठा के फायदा नहीं। आई थिंक 17 करो, 17, 19, 20, सब तो यही है। कौन सा करोगे देख लो एक बार फटाफट से। 17, 18 दोनों का जरूरत है। एपी वाला एएमजीएम इनइक्वालिटी वाला था, ঠিক আছে না? 3 possible numbers of each, না প্রথমটা কি তা মিনিমাম পসিবল নাম্বারস 17। हाँ, आर इन एपी, एपी मतलब 2b इक्वल टू a प्लस c, abc 4 है। then the minimum possible values of b, minimum possible values of b अपने को क्या पता है, क्योंकि एबीसी दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, अच्छा पॉजिटिव नंबर है, तो अपने को एपी जीपी का और मिनिमम मैक्सिमम है, तो एएमजीएम वाला एक हिंट है कि हम एएमजीएम वाला से खेलें। एएमजी वाला पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, और भी सही है क्योंकि एक सेट फिक्स होना चाहिए था एएमजीएम के लिए, लेकिन अपने को किसका चाहिए, बी का चाहिए, तो ए प्लस सी के जगह में हम तो 2 भी लिख सकते हैं। खत्म कहानी, मिनिमम वैल्यू आ गया। बी का मिनिमम वैल्यू कितना चाहिए, 4 का क्यूब रूट। आई थिंक 18 घर में कर सकोगे ना, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ठीक है ना? 18 ना बोलो था, a/2 करके लिखा था हम लोग ने, 2a चाहिए b/2, तो इसको छोड़ दो, 19 को देखो। में 18 हुआ है, 18 तो अच्छा छोड़ो बोला, 19 কেমনে করবা 19 রে, 2x plus 3y plus 4z is equal to 9।
ठीक है, एक्स वाई जेड सब ग्रेटर देन 0 है, अच्छी बात है। फिर तुमको बोला है देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, देन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस वाई होल क्यूब एंड देन 4 प्लस जेड टू द पावर 4। इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। किया तुम लोग? नहीं किया? এটাকে বানাতে হবে এখান থেকে एएमजीएम দিয়ে বোঝা যাচ্ছে क्योंकि प्रोडक्ट का अपने को मैक्सिमम चाहिए ना, प्रोडक्ट का मैक्सिमम ही निकलता है am is greater than equal to a plus b by 2 is greater than equal to root ab, तो प्रोडक्ट का मैक्सिमम निकलता है और सम का मिनिमम निकलता है एएमजीएम से, पॉजिटिव है तो उसी को यूज करने के लिए हिंट तो लग रहा है कि वही है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, बनाना पड़ेगा क्योंकि इनका प्रोडक्ट चाहिए तो इनका सम भी चाहिए होगा अपने को। तो अपने को ऐसा 1 प्लस एक्स कितना है, 2 है, तो हम ऐसा करते हैं 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, क्या कर लिया हमने, इसको बना रहा हूँ, 2 1 प्लस एक्स हो गया, 3 वाई प्लस 2 चाहिए, हो गया 3 वाई हो गया। देखते हैं नंबर क्या एक्स्ट्रा दिया, देखते हैं, और 4 चाहिए 4 प्लस जेड, तो कितना हो जाएगा अपना, कितना एक्स्ट्रा दिया मैंने, नंबर देखो क्या एक्स्ट्रा दिया, यहाँ 2 है, यहाँ 3 2 6 है, यहाँ 4 4 16, 16 प्लस 6 है 22 प्लस 1 23, 9 तो वहाँ पहले से था, हमने 14 ऐड किया, तो 9 प्लस 14 23 हो जाएगा, नहीं हमने 23 ऐड किया तो 9 प्लस 23 34 हो जाएगा, 32 है ना ये, पहले 9 था और अपन ने कितना ऐड किया, 1 1 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 और 16 है, 3 बार যোগ করে 3 টাকে দেয় 1 2 8 8 2 10 और 16 16 और 2 से 26 26 ऐड किया क्या हम लोग, 4 कितना ऐड किया, 4 और 2 आएगा, 4 4 जा 16 16 प्लस 8 24 प्लस 2 26, 9 प्लस 26 कितना हो जाएगा 35, इसमें इधर 26 ऐड किया तो इधर भी ऐड करना होगा ना, तो अभी आपने को इसमें एएमजीएम लगाया था 35 थे सम डिवाइडेड बाय टोटल कितना टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 3 7 2 9, ऐसे भी देख सकते हो 4 है 3 है 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9th रूट ऑफ ये जो है k है, लेंगे बस हो गया, k का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इसका 9 पावर हो जाएगा है, ऐसा कुछ কেমনে কাটবো, তারা কাটছে 33 হইব, এটা তাহলে আমরা কিতা করতেছি, কোন সময়তে জিগেতেছি করে না কি 16 16 দিয়ে 18 দিয়ে 20 এ 24 অ্যাড করছি, লইয়া 33 ঠিক আছে, 32 লিখছিলাম, সো 11/3 টু দি পাওয়ার 9, 4 4 16 4 4 8 8 4 12 12 হচ্ছে 16 16 আর 2 20 20 আর 2 22 নেই তো 24 কই 33 কেন, কত অ্যাড করলাম আমরা 160, ফিডা বুঝছো, কোন সময় থেকে কইতেছে আমার ইচ্ছে হইতেছে না যোগ করেন লাগে, বেটা তো একটা যোগ করে কয় না, হেল্প করে না, কিছু নেই, আমি তো আছি ঠিক নেই, তো আপনি 1 প্লাস 2 by 2 1 प्लस 2 प्लस 3 by 2 ऐसे चल रहा है, तो ये 2 नहीं 3 है, तो देखो तो इसका n टर्म क्या होगा, हम लोग इसी ताल में अगर लिखेंगे n टर्म में नीचे तो n होगा, ऊपरे ऊपरे देखो ऊपरे কি হইতেছে একটা সিরিজ আছে যেটা 1 2 1 2 এরপরে 1 2 3
মানে ফার্স্ট টার্মে 1, সেকেন্ড টার্মে দুইটা যোগ করতেছে 2 পর্যন্ত, থার্ড টার্মে 3 পর্যন্ত যোগ করতেছে, তাহলে ফোর্থ টার্মে কত 4 পর্যন্ত যোগ করবে, তাহলে n এর টার্মে কি করব হে n পর্যন্ত প্লাস করবে, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি নাথিং বাট tn ইজ সামেশন n বাই n। এটা তো সামেশন n শিখছিলাম আজকে আমরা। এটার ফর্মুলা কি আছে, n ইনটু n প্লাস 1 বাই 2। আচ্ছা আরেকটা জিনিস লক্ষ্য আছে, তোমরা যদি মনে আছে এনসি, তোমরা তো এনসি 2 পড়ছিলে, পড়ছো না? এটা কি আছিল n इंटू n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है ना, उसके साथ मिला के रखना और इसमें कंफ्यूजन मत होना, इसमें होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। कैसे याद रखते हैं, क्योंकि साम है तो भरेंगे, तो भरेंगे n प्लस 1, ठीक है ना, भरेंगे। कुछ टॉपिक में तुम लोग का फायदा होगा क्योंकि वो लोग किया नहीं, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तुम लोग तो आरएस करना, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला जाएगा, तुमको बहुत फटाफट समझ में आ जाएगा, वहाँ पर उन लोग का तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। स्ट्रेट लाइन वेट लाइन जब करोगे तब तो तुम लोग के यहाँ बहुत अच्छी तरह हो गया, ठीक है ना, वहाँ स्ट्रेट लाइन फिर से होगा, हाँ अच्छी तरह हो जाएगा, वहाँ का मटेरियल हो जाएगा, कोऑर्डिनेट अच्छी तरह बन जाएगा तुम्हारा, बेसिक से लेके स्ट्रेट लाइन से लेके स्ट्रेट लाइन एक अच्छा खासा टॉपिक, बहुत लंबा था कोऑर्डिनेट वाला अपना ना, वो भी वहाँ अच्छी तरह हो जाएगा तुम्हारा फिर से। Tn इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2, और क्या चाहिए अपने को, क्या था, क्या निकालना था अपने को, अच्छा इसका साम निकालना है, तो Sn क्या हो जाएगा, समेशन हाफ ऑफ समेशन n प्लस समेशन 1 কত রে বাবা, समेशन n কত, n ইনটু প্লাস 1 বাই 2 ইনটু 2 বাই 2 কোন জানা, এটা समेशन 1 তো 1 না, समेशन 1 समेशन 1 समेशन 1 समेशन 1 1, अब तो इन्हें दिता तब ना फिर लेके इनते दिले ते सिर की हैं, समेशन 1 बुझे 1 बोला, समेशन 1 n n कॉमन नहीं है ना, n बाई 2 n प्लस 3 n इंटू n प्लस 3 बाई 4। नेक्स्ट वाला तो फिर एजीपी है ना, एजीपी नहीं देव से ভালো করে দেখো, চোখ কানা ঘুরে দেবো কিন্তু আমি, এরপরে যদি এটা এজিপি না হয় চোখ কিন্তু আমি রাখতাম না, তুমি শেষ, তুমি শেষ। আচ্ছা শেষ, কষ্ট করে লাভ নেই। কত সামেশন শেষ নেই, এটা কি ইনফিনিট সিরিজ নেই, এজিপি নেই রে মনা, তুমি দেখলে অনুষ্কা দেখেছো এজিপি এটা, হ্যাঁ ওয়ান থাকলে নিয়ে এজিপি নেই, এজিপি কি ওয়ান থাকতে হতো না বেশি, মানে 1 को लेके मुश्किल हो रहा है, বাকিটা ছিল। अरे उल्टा लगता ना है, खाता उल्टे तो दुनिया भाला इधर नहीं बेटा, हमको दे है बेटा, उल्टे है क्या बोलेंगे, साइड साइड साइड, अरे यहाँ तो गैप नहीं है, मतलब 1 को छोड़ के फिर एजीपी है, अच्छा यहाँ से लेके एजीपी है, ये वाला एजीपी है, अच्छा एजीपी का ए क्या है, इसका A2 है, ए क्या है, क्या है 2/3 ना 2 बोलो, 2 भाई डरता क्यों है, फिर डी बोलो, D4, तो इसके साथ +4 करने से 6 आता है, तो फिर ए क्या है, कौन सा चेंज करना होगा, ए को ना डी को, एजीबी का स्ट्रक्चर देखो, ध्यान रखो एजीबी का स्ट्रक्चर क्या था, ए इंटू ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, ध्यान रखो इसमें थोड़ा सा झोल है इसमें, इसलिए अच्छा क्वेश्चन चाहिए। क्या है अब, डी क्या है, डी क्या है, तो फिर आर क्या होगा, मतलब इसमें से हम 2/3 कॉमन ले लेते हैं, अब कहानी इजी हो जाएगा।
ठीक है ना, या फिर खाली 3 1/3 कॉमन लेने से भी होता है, लेकिन उसमें भी हो जाएगा। क्या है इसमें से तो 3 में है। अब ठीक है, अब एक लिख सकते हैं, नाउ इट इज इजी टू है। ए कितना है, अभी 1 है, ठीक है, और डी कितना है, 2 है, और आर कितना है, 1/3। नाउ इट्स इजी टू राइट, अदरवाइज उससे पहले ही मुश्किल में चल रहा है। तो अभी ये 2/3, अंदर में क्या होगा, a by 1 minus r plus dr by 1 minus 1/3 whole square। थ्री है क्या इसका आंसर? मुझे तो लग नहीं रहा है, देखना तो एक बार चेक करना। और तुम्हारा तो आंसर नहीं দিছিলাম নি आंसर, আমি ফটো তুলে দিছিলাম না এখন पहले बार চাপনে এখন আর লুকাইলো, হ্যাঁ এখন আর লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তে হবে না আমাদের রেকর্ডিং, না একদম পেয়ে যাবো। Sum of the series 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 2 square, 1 plus 2 plus 2 square plus 2 cube up to n terms। अब इसमें भी देखो क्या हाल है, इसका पहला टर्म क्या है, 1 plus 2 है, दूसरा टर्म क्या है, 1 plus 2 square, तीसरा टर्म क्या है, 1 plus 2 क्यूब तक ऐड हो रहा है, तो चौथा टर्म में 2/4 तक ऐड होगा, तो nth टर्म में कहां तक ऐड होगा, 2 to the power n तक ऐड होगा, ये उसका nth टर्म है, मतलब nth टर्म खुद ही एक जीपी है, ठीक है ना। तो tn क्या है इसका, tn हो जाएगा, ये एक जीपी है, और इसका सम का क्या फॉर्मूला है, a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1, मतलब 2 to the power n minus 1 है। और आपने को क्या चाहिए, Sn चाहिए, Sn मतलब इसके ऊपर समेशन लगेगा, अभी समेशन ऑफ 2 to the power n मतलब क्या है, 2 to the power 1 2 to the power 2 1 इट ऑल जीपी, फिर फर्स्ट टर्म कितना है, 2, कॉमन रेशियो, हाँ कॉमन रेशियो 2, और समेशन 1 तो 1 बेटा কি করি, লগারিদম করব শুরু, কি একটা লাগছে দেন বে। ফিফটি অবধি টাচ করে দিয়ে যাবে না, তোরা কয়েকটা অঙ্ক করে দিই, কিছু প্রপার্টিজ দেয়, ইকুয়েশনের আগ পর্যন্ত শেষ করে দিতে দিই, 55 না 62 পর্যন্ত শেষ করে দিতে দিই, তাহলে इक्वेशंस इन इक्वेशंस से सीरीज कल के एक दिन टाइम बन जाएगा, একটু বাকি থাকলে मान लेते पड़े बन जाएगा। देखो ये भी एक अच्छा चीज है, लॉगरिथम हम लोग ने कभी पढ़ा नहीं, तो इसको थोड़ा मुश्किल भी होता है, तो यहाँ पर इसको भी अच्छे तरह दिया, इज आल्सो ए गुड वन, ठीक है। तो लॉग को समझने के लिए लॉग आया कहाँ से, बेसिकली देखो जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं a to the power x equal to b है, जैसे मान लो 2 to the power 3 equal to 8 है, इसी को वो लोग ने लॉग में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, log 8 to the base 2 is equal to 3, इसी का भाई है। तो
तो जब भी इसको देखोगे इसके बारे में याद करना, जब भी इसको देखोगे इसके बारे में याद करना, ठीक है ना। क्या है ये 2 है बेस, ये बोलता है कि 2 के ऊपर कौन सा पावर देने से 8 आएगा। लॉग क्या बोलता है 2 के ऊपर कौन सा पावर देने से 8 आएगा, बस ये बेस 2 है मतलब 2 के ऊपर क्या पावर देने से 8 आएगा, पावर लिखो। और यहाँ हम लोग 2 के ऊपर 3 4 लगा के देखते हैं क्या आएगा, और यहाँ इसको पता है क्या आएगा, पावर बोलो कितना पावर देने से आएगा, उल्टा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं फिर जब डिफाइन करते हैं, log b to the base a is equal to x। तो जब हमने ये डिफाइन किया इससे तो साथ साथ कुछ अजम्पशन आ गया, जैसे एक गड़बड़ हम लोग ने ये देखा, क्योंकि बेस इसका कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, बेस हमेशा 0 से ज्यादा होना पड़ेगा। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, क्या मुश्किल है। बेस अगर नेगेटिव है, मान लो -2 का क्यूब है, कितना आ रहा है -8, फिर -2 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है 4। तो हम लोग अगर लॉग में 4 लिख के -2 लिखेंगे तो हम लोग को क्या लग रहा है, क्या आएगा आंसर 2 आएगा, लेकिन सेम इसका भी आंसर 2 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो सेम इनपुट में 2 आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जब हमने लॉग डिफाइन किया तो हम बोला नेगेटिव वाला को हम लेंगे नहीं, ठीक है ना। नेगेटिव उसका बेस हम लोग कभी नहीं करेंगे, इसका बेस को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। तो इसी हिसाब से डिफाइन हुआ कि हाँ नेगेटिव वाला के, लेकिन नेगेटिव वाला लेंगे तो बहुत झंझट होगा, आगे भी आएगा। नेगेटिव वाला को लेके लिखने जाएंगे तो बहुत झंझट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए बोला नेगेटिव वाला, और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को अपना कॉन्ट्राडिक्ट कर लेगा। एक तो हमने अभी देखा है इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया, ऐसे और भी केसेस है जहां उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। एक और मुश्किल है, 1 भी नहीं हो सकता। अब 1 में क्या करोगे, हाँ तो 1 में तो कितना 1 लिखेंगे हम, log 1 to the base 1 is equal to 3 भी हो सकता है, log 1 to the base 1 is equal to 4 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अपने को इसमें भी गड़बड़ हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो जब भी डिफाइन किया हमने इस हिसाब से डिफाइन कर दिया, क्या के ये ध्यान रखना हमेशा। साथ में और एक चीज आ गया, क्योंकि बेस हमने पॉजिटिव बेस लिया, तो पॉजिटिव बेस के ऊपर कुछ भी पावर डालो कभी भी नेगेटिव आंसर आएगा। एक पॉजिटिव नंबर के ऊपर कुछ भी पावर डालो, फ्रैक्शन डालो, ये डालो, वो डालो, जो तुम्हारा मन में सब डालो, ठीक है, सब डालो, कभी नेगेटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसलिए लॉग का जो इनपुट होता है वो भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, 0 भी नहीं हो सकता है, 0 भी अलाउड नहीं है। 0 अलाउड क्यों नहीं है, इनपुट इसके ऊपर कुछ ऐसा पावर दे सकते हो कि आंसर 0 आएगा। बेस तो हम लोग 0 मान नहीं रहे, 0 से ऊपर बेस पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर कौन सा ऐसा पावर देने से 0 आएगा, कभी नहीं आएगा, समझ में आ रहा है, कभी भी नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग जब लिखेंगे log a to the x to the base a, इसको हम लोग y बनते हैं, आ गया फंक्शन। अभी x अपना इनपुट है और y अपना आउटपुट है। क्या क्या डिफाइन होना चाहिए कि a शुड बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, और अपना x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन होगा तो log x बन सकता है। जब ये आ गया तो log x का ग्राफ प्लॉट करने का मन किया, एक ताल में जाता हूँ मैं, एक फ्लो में जाता हूँ, देखता हूँ लोग कहाँ पे है। अच्छा थोड़ा और एग्जांपल देखे, दे आर गुड, मेरे से भी बेहतर है, दे गुड हुए, नाइस हुए थे। थोड़ा और एग्जांपल वो लोग ने दिया, जैसे log 16 to the base 2 क्या होगा, 4 होगा। तो दे गिव सम एग्जांपल्स व्हिच गुड, log 10.001 तो कितना हो जाएगा, 110 के ऊपर कितना पावर देने से, -4, ठीक है ना। ये तो -4 है ना, 3 है, -3 हो, ये 1/1000 है ना, 0.001, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, log 10 अंदर में कितना हो जाएगा, -3। समझ में आ रहा है ये सब, यू कैन अंडरस्टैंड कहाँ से 2 के ऊपर कौन सा पावर देने से, अगर 10 के ऊपर -3 देने से ये आ रहा है। ओके, जब a = 10 होता है, जब ये वाला बेस जो हम लोग डिफाइन करा, ग्राफ थोड़ा बाद में आते हैं,
जब ये जो ग्राफ है, ये जो ये है a इज इक्वल टू अगर 10 होता है तो इसको हम लोग log टू द बेस 10 इस टाइप का लिखते हैं। टेन टू द पावर माइनस 3 1 by 10 cube 10 into 10 into 10 1 by 1000 तीन घोड़ा के दशमिक আসবে एक ঘর ঠিক আছে না হতেই পারে কনফিউশন ঠিক আছে এখন কোনো সমস্যা ऑल ओके तभी हम लोग जैसे इसको log 10 हम लोग log 10 लिखते हैं लेकिन अगर e हो जाता है तो फिर log e जो है इसको हम लोग फिजिक्स में लिखते हैं ln मैथ्स में तो जनरली log ही लिखते हैं हमेशा लेकिन कभी भी अगर तुमको ln दिखेगा तो ये एक्चुअली नेचुरल log है e वाला जो बेस है इसको कहते हैं नेचुरल बेस हम लोग सो दैट्स नोन एज नेचुरल log अब e कैसे नेचुरल बेस हुआ e कहाँ से पैदा हुआ ये भी एक एक्सरसाइज ये भी इस एक्सरसाइज में लर्न ठीक है ई का जन्म कहाँ से हुआ ठीक है ना कौन सा घराना में उसका जन्म हुआ पिताजी क्या था मम्मी क्या था क्या करते थे वो लोग ठीक है ना उसका दादाजी क्या करते थे वो क्या करते थे ठीक है सब देखेंगे हम आगे बढ़ते ग्राफ वो लोग थोड़ा बाद में आएगा जब उन लोग आएगा उसी हिसाब से मैं भी आता हूँ तब एक फ्लो में रहता है हम लोग बोलते बोलते कभी कभी बोल जाते हैं रिमार्क्स देखो पेज चेंज जैसे 1 के ऊपर बहुत सारे पावर इसलिए बेस को 1 नहीं रखा गया व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 तो b हमेशा पॉजिटिव होगा इसलिए log का b भी हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है प्रॉपर्टीज है कुछ जैसे log 1 0 होगा क्यों 0 होगा कुछ भी बेस दे दो a टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1 इसलिए log के अंदर 1 टू द बेस एनीथिंग इज ऑलवेज 0 क्योंकि a के ऊपर कौन सा पावर देने से 1 होगा 0 एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 तो इसलिए log 1 0 हो गया log a टू द बेस है कुछ प्रॉपर्टी अभी देखो बुक में है लेट्स राइट एक बाय पहला प्रॉपर्टी क्या है log 1 टू द बेस एनीथिंग 0 समझ में आया दूसरा प्रॉपर्टी log a टू द बेस a इज 1 ये भी समझ में आ जाएगा a के ऊपर कौन सा पावर देने से आएगा 1 ऐसे पढ़ने बोला था हम 3 नंबर अब देखो चीजों को समझो थोड़ा सा जैसे मान लो अपना बेस ग्रेटर देन 1 है जैसे 2 है जैसे 2 के ऊपर 3 दिया 8 हुआ 2 के ऊपर 4 दिया 16 तो क्या होगा कभी नेगेटिव कुछ आएगा इसमें ठीक है ना जैसे तुम 8 16 जब a ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो जैसे log a यहाँ पर हम कुछ भी डाल रहे हैं जैसे 8 डालेंगे 16 डालेंगे ठीक है ना पावर कभी नेगेटिव आएगा कुछ भी हम डालें से इसमें आएगा एक जगह में जैसे 2 टू द पावर -1 कितना आ जाएगा तो यहाँ पर अगर जैसे log 2 8 लिखेंगे 3 आया log 16 लिखेंगे 4 आया समझ में आ रहा है ये हो गया 2 के बेस के लिए अब कहानी थोड़ा उल्टा हो जाएगा अगर मैं log का बेस 1 से छोटा लूंगा हाफ ले लिया बेस अब कहानी क्या हो जाएगा अब कहानी इस टाइप का कुछ बन रहा है अब मेरा बेस है हाफ ठीक है ना हाफ के ऊपर कौन सा पावर दिया स्क्वायर दिया 1/4 हाफ के ऊपर क्यूब दिया 1/8 हाफ के ऊपर -2 दिया 4 हाफ के ऊपर -3 दिया 8 अब देखो अभी अगर यहाँ पर 1 दोगे तो कितना आ रहा है -3 अभी अगर यहाँ पर 4 दोगे आ रहा है -2 अभी अगर यहाँ पर क्या था 1/2 ही दो 1/2 देने से यहाँ 1 आएगा हाफ दिया 1/4 दिया तो यहाँ पर अभी देखो उल्टा हो रहा है अच्छा इनपुट अगर पॉजिटिव होता है मतलब बेस अगर ग्रेटर देन होता है 1 होता है तो इनपुट भी अगर 1 से ज्यादा है तो आंसर मेरा पॉजिटिव आता है लेकिन सेम कहानी उल्टा हो जाता है अगर बेस मेरा 1 से छोटा है
तब 1 से कम इनपुट देने के लिए पॉजिटिव, 1 से ज्यादा इनपुट दिया तो नेगेटिव हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसी को यहाँ पर लिखा है ये। देखो बेस ग्रेटर देन 1 के लिए, जैसे ये वाला है बेस ग्रेटर देन 1, कौन सा? ये वाला। पहला देखो 3 का 1 क्या लिखा है, log x टू द बेस a, अगर a ग्रेटर देन 1 है, ये वाला लिखा है a ग्रेटर देन 1 के लिए। x इक्वल टू 1 में इनपुट 1 दिया तो 0 होगा, क्योंकि 1 log 1 हमेशा 0 है, कुछ भी बेस हो। अब अगर इनपुट पॉजिटिव होगा तो तुम्हारा आउटपुट भी पॉजिटिव होगा। ये वाला को लिखा कैसे? पॉजिटिव लिखा। और इनपुट अगर नेगेटिव होगा तो आउटपुट भी नेगेटिव होगा। सॉरी 1 में 0, 1 के ऊपर जाओगे पॉजिटिव मिलेगा, 1 के नीचे आओगे नेगेटिव मिलेगा। सेम कहानी log x टू द बेस a, अब क्या हो जाएगा? अब 1 से छोटा है, 1 में तो ये फिर से 0 है। अभी अगर 1 के ऊपर जाओगे तो तुमको नेगेटिव दिखेगा, अगर 1 से नीचे रहोगे तो पॉजिटिव दिखेगा। दिस इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि बेस 1 से छोटा मतलब फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के ऊपर अगर तुम फ्रैक्शन को जितना भी पावर दोगे फ्रैक्शन ही रहेगा वो पॉजिटिव देने से। तो इसलिए वो पॉजिटिव देने का मतलब क्या है? इसलिए वो फ्रैक्शन रह रहा है हमेशा। फ्रैक्शन कब रहेगा? जब ऊपर में पावर पॉजिटिव होगा। फ्रैक्शन लाभ देके ऊपर कब आ जाएगा? जब पावर नेगेटिव होगा। और इंटीजर कब फ्रैक्शन बन जाएगा? जब उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, तब वो फ्रैक्शन बन गया। इंटीजर कब इंटीजर रहेगा? जब पॉजिटिव पावर आएगा। इसको तुम इसके हिसाब से लिखा गया। 2 का 1 क्या बोला है? log mn इज इक्वल टू दिस। ये तो कहां से आया तुमको पता होगा, 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस y। उसी कहानी से आया। तो बोला है log क्या है? 2 टू द पावर mn, या फिर x, यहाँ mn लिखता है क्यों? बाद में कंफ्यूज हो जाएगा। mn इज इक्वल टू log 2 टू द पावर m प्लस, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो इसमें log में प्लस हो जाता है, क्योंकि पावर हमेशा प्लस होता है। तुम एक एग्जांपल देके देख सकते हो, जैसे 2 क्यूब इक्वल टू 8 है और 2 4 कितना है? 16 है, ठीक है ना? तो 8 इंटू 16 क्या हो जाएगा इधर? 8 इंटू 16 इज mm है, 8 इंटू 8 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 4 रखो। 4 इंटू 8 को तो 32 माने को तो 2 टू द पावर 5 और 3 प्लस 2 5, ये 3 देगा, ये 2 देगा 5, और यहाँ से अगर 32 डालोगे तो 5 आएगा लेफ्ट हैंड। ठीक है? 55 एक क्वेश्चन है, देखो 55 56 ये दो को देख के आज छोड़ो, कालो और प्रॉपर्टीज देखो। दो क्वेश्चन देख लो। ये जितना प्रॉपर्टी अभी हम लोग देखा है इसके ऊपर दो छोटा छोटा क्वेश्चन है। अच्छा है, हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन देके रखा है। ग्राफ अभी तक आया नहीं, आई विल ड्रॉ द ग्राफ जब आएंगे, नहीं आएंगे तो उससे पहले जरूरत होगा तो एक्सप्लेन। जैसे क्या बोला, log 1 प्लस 2 प्लस 3 को हमको क्या प्रूव करना है? log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 इक्वल टू log 1 इंटू log 2 इंटू log 3। ये ब्रैकेट नहीं है, से खुल जाएंगे। नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है कि तुम ब्रैकेट खोल दिए, ठीक है ना? हम ये नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो इसको प्रूव करना होगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। और log 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? log 1 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 3 2 आर 6 इंटू 1। अब क्योंकि इंटू है तो आपको को पता है log m इंटू m होने से क्या होता है? log m प्लस log n, पावर से प्लस हो जाता है, प्रूफ हो गया। এরপরে নেক্সট কি বলেছে? কটের। अब log 10 कॉट लिखा, सब लिखा। लिखने के बाद
पाई बाई 180 है ना, तो पाई बाई 180 मतलब क्या है, 1 डिग्री है। पाई रेडियन, ये सब कुछ नहीं देने का मतलब क्या है, रेडियन है। जब कुछ नहीं देता है तो अंदर में समझ लेना दीज आर रेडियंस। तो पाई रेडियन बाई 180 मतलब कॉट 1 डिग्री 2 डिग्री, हालांकि ये सही नहीं लिखा है ये लोग, ये तो सही नहीं है, इनको लिखना चाहिए था। कुछ नहीं लिखते तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक अपने को लग रहा है। जैसे पाई आर बाई 180 है ना, कुछ नहीं लिखते तो ये पूरा रेडियन बन जाता है, हालांकि वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर पाई रेडियन इंटू ये सब वैल्यू है, बाकी जैसे पाई रेडियन है तो पाई के ऊपर सी देके ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज पाई बाई 180 रेडियन भी बन सकता है, 3.14 है पाई का वैल्यू। हाँ, पाई रेडियन में अगर रखोगे तो रेडियन को कन्वर्ट करने से 180 डिग्री बन जाएगा। तो सॉल्यूशन में वो ऐसे दिए थे, बट ওইটার মধ্যে দেয়নি, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब तुम 1 डालोगे तो cot 1 डिग्री cot 2 डिग्री करके ऐसे लंबा जाएगा। अब लॉट में लॉग में क्या है, सब इंटू हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला समझा कि नहीं। लास्ट में क्या हो जाता है, log 10 cot 1 cot 2, ये तो क्लास 10 में ये सब सीरीज किया होगा आपको। cot नॉर्मली क्या होता है, बीच में एक होता है 0 हो जाता है, एक इंटू होने से पूरा 0 होता है, लेकिन कॉट में तो 0 नहीं है। लेकिन कॉट में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये बन जाएगा 10 1, और cot 1 और 10 1 1 बन जाएगा। ऐसे करके सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ cot 45 बचेगा बीच में, और बाकी इधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1, तो अंदर से आएगा सिर्फ 1, वो दे देगा तुमको 0, ठीक है। नेक्स्ट डे बाकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर लॉग का इक्वेशंस करेंगे, इनइक्वालिटी करेंगे, फिर सीरीज करेंगे, फिर खत्म। কালকে দেখি 8:30 থেকে একটু অথবা 11টা পর্যন্ত করতে পারি, দেখি না কতটুকু, আর নাহলে একটু বাকি থাকলে মানডেতে করবো। টুইসডেতে গেলে বেটার হবে। তবু টুইসডেতে গেলে একটা মুশকিল কি হতে পারে, ধরো ওরা তো স্টেপ 1 স্টেপ 2 করে ফেলেছে,